નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 6નું હિન્દીનું એકમ કસોટી પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તારીખ છે મિત્રો આપણી 28/9/2024. કુલ ગુણ છે 68 પણ 25 ગુણનું પેપર જોવાના છીએ. અને આપણે 1 થી 5 યુનિટના ક્વેશ્ચનમાંથી 1 થી 2 યુનિટના ક્વેશ્ચન આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છે. બાકીના 2 પેપર આવી ગયા છે, જોવાના બાકી હોય એમાં 1 થી 5 પાર્ટના ક્વેશ્ચનો આપણે કવર કરી લીધેલા છે. તે પણ સાહિત્ય તમે જોઈ લેજો. જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, અને જો આની PDF જોતી હોય તો આપણી વોટ્સઅપ ચેનલ અને આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ વન એજ્યુકેશન ગુજરાતને જોઈન કરી લેજો. એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. બંનેને સાહિત્ય તમે જોઈન કરી લેજો, તમને ફોટા અને PDF મળી જશે. તો આપણે સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. પ્રશ્ન 1 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. तो पहलू से, शिकारी ने हिरनी को कहाँ छोड़ा? तो शिकारी ने हिरनी को कहाँ छोड़ा था? તેમાં આપણો જવાબ આવશે शिकारी ने हिरनी को जंगल में छोड़ा था. તો શું જવાબ આવશે? जंगल में छोड़ा था. પછી છે બીજા નંબરનું, दयालु शब्द का विरोधी शब्द कौन सा है? तो दयालु शब्दों का विरोधी शब्द है निर्दयी. શું આવશે? निर्दयी જવાબ આવશે. પછી से कछुआ किस कारण गिर गया? तो कछुआ बोलने के कारण गिर गया. तो कछुआ से बोलवानी आदत જે એના બે હંસ લઈ જતા હતા એને ના પાડી હતી કે તું કંઈ ભાઈ બોલતો નહીં, પણ આ કછુઆ છે એનાથી રહેવાનું નહીં. માણસ જોઈને બોલવા મળ્યો, કેટલા માણસને બધું, એટલે એ એક ભેગીનો આવ્યો હેઠો ફરફરતો. પછી આપણે આગળના ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. ચોથા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, કૌવા કहाँ પર બેઠા है? તો કૌવા છે ડાળી પર બેઠા है, વૃક્ષની ડાળી પર કૌવા બેઠા है. 5वां नंबर नो क्वेश्चन से, हमें पशु पक्षियों के प्रति खाली जगह रखनी चाहिए? तो हमें पशु तुम्हारा जवाब देवाना है मैत्री भावना, सद्भावना, घृणाभाव, शत्रुभाव. हिरनी को गोली किसने मारी? तो हिरनी को गोली शिकारी ने मारी थी. कहाँ मारी थी? उसके पैर पे मारी थी. शिकारी को मांस खाने की तो इच्छा हुई थी, हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई और जंगल में शिकार करने के लिए गया था. पछी से आगळना क्वेश्चन. આગળના ક્વેશ્ચન જોતા પહેલાં હું તમને બીજા યુટ્યુબ ચેનલ વિશેની માહિતી આપી દઉં. જો મિત્રો આપણે આ બીજી યુટ્યુબ ચેનલ છે હરીબારી, યુટ્યુબ ચેનલનું નામ છે. આપણે આમાં વ્લોગ્સના વિડીયો મૂકીએ છીએ. વ્લોગ્સના આપણે ડેઇલી વ્લોગ્સ મૂકીએ છીએ, મિની વ્લોગ્સ મૂકીએ છીએ. તો આ ચેનલને પણ તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાની રહેશે. આમાં શોર્ટ વિડીયો છે, આપણે લોંગ વિડીયો બધું નાખીએ છીએ વ્લોગના વિડીયો. તો આ ચેનલને પણ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. વિડીયો સારા લાગે તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ફરીથી આપણે સોલ્યુશન તરફ આગળ વધીએ. तो આગળના क्वेश्चन से निम्नलिखित रिक्त स्थानों की प्राप्ति कीजिए. तो 7वां नंबरનું છે, शिकारी को बहुत हुआ. तो શું? बहुत पछतावा हुआ. 8वां नंबरનું છે, खाली जगह को देखकर कछुए से रहा ना गया. तो लोगों को देखकर कछुए से ना रहा कर बोल गया वो. પછી 9वां नंबरનું છે, घड़े में खाली जगह पानी था. तो घड़े में थोड़ा पानी था. तो ઘડા પર જે ઘડો હોય છે, આવી રીતે ઘડો હોય છે, એમાં પછી નાનો એવો ઘડો આપણે અહીંયા પછી આમાં પેલો પથ્થર નાખી, આમાં થોડુંક અહીં પાણી હોય, પથ્થર નાખીને કાગડો પાણી ઉપર લાવી દે છે. પછી છે, लोमड़ी ने कौवे से खाली जगह सुनाने के लिए कहा. तो गाना सुनाने के लिए कहा. हम सबको जीवन खाली जगह की कहानी है. हिलमिल के लहराएंगे खाली जगह का निशान. तो તમારે જાતેના જવાબ દેવાના રહેશે. પછી છે, હર્ષ ભરે ગાયે हम गीत सुहाने. खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है. તેના જવાબ તમારે જાતે દેવાનો રહેશે. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए. तो 15वां नंबर છે, कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? तो कौवे ने युक्ति से काम लगाकर अपनी प्यास बुझाई. એમ ઘડો હતો, ઘડામાં પાણી ખૂબ નીચું હતું, એટલે કે અંદર હતું, એનું આપણે રીતે છાસ આંબીએ કેમ નહોતી, એટલામાં એ પથ્થર નાખી રાખીને પાણી ઉપર લાવી નાખ્યું અને પછી એની પ્યાસ બુઝાવી નાખી. 16મા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? तो लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया. 17वां नंबर से, कछुए की क्या आदत थी? कछुए की बहुत बोलने की आदत थी. 18वां नंबर से, कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? तो कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया. धड़ाम से जमीन पर गिर गया નો જવાબ રહેશે. प्रश्न 2 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए. हमारा जीवन क्या है? तो हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है. 20वां नंबर से, हम सबको रक्त कैसा है? हम सबका रक्त एक जैसा लाल है. हम कैसे तराने गाएंगे?
तो एनो जवाब रहेशे हम मानव जाति के समता और ममता के तराने गाएंगे। 22वां नंबर से हमारा कर्म क्या है? तो हमारा कर्म है विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। तो आना जवाब तमारे साहित्य जोई लेवाना रहेशे। चैनल में नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। पछी ते निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक को क्यों रखा गया है? हमारा धर्म क्या होना चाहिए? काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो एनो रिपीट थई जशे तो बंनेना आंसर एक सरखा छे तो ए पण तमे वांची लेजो सरी। तो साहित्य पोज करीने वांची लेजो। तो पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। काव्य का ऐसा शीर्षक हमारा धर्म है सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। तो આવી तो तुम्हारा जवाब कर लेवा। पछी से सभी नदियों अलग अलग है फिर भी कवि को क्यों कहते हैं कि एक ही पानी, और घर घर में कौन कौन सा मधुर गीत गान गूंज रहा है। तो एनो जवाब तमे साहित्य जोई लो पोज करीने। तो साहित्य तमारा जवाब वांची लेवाना रहेशे। पछी से निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो स्वस्थ तो अस्वस्थ, आज मैं स्वस्थ हूँ, अस्वस्थ कल में अस्वस्थ था, अस्वस्थ नो कल में अस्वस्थ था। तो दुआ तो बददुआ, वरदान वरदान तो शाप, मान तो अपमान, सुख दुख, नफरत तो नफरतनु प्रेम थशे, शुभ शुभनु अशुभ, दूरनु पास, मृत्यु तो मृत्युनु जीवन, जड़ जड़नु चेतन, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग कीजिए। वाह मज़ा आ गया तो वाह मज़ा आ गया, अरे तुम नहीं गए, अरे तुम नहीं गए, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो काव्य पंक्ति से साहित्य पूर्ण कर लेजो। हर्ष भय गाए जगत एक लोक, राष्ट्रों में एक लोक, तो काव्य पंक्ति पूर्ण कर लेजो। पछी से निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। वैद्य तो चिकित्सक, जंगल तो वन, शिकारी तो आखेटक, चित्र तो दृश्य, लोक तो विश्व दुनिया, हाथ तो पाणी, अंबर तो आकाश आसमान गगन। तो साहित्य तमारे आ रीतेनुं पेपर सोल्यूशन जोई लेवानुं रहेशे। चेनल में नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो मित्रों विडियोने एंड करीए छीए। जय हिंद जय भारत।